spot. Simple photo. Simple photo. طلعت فلاش يلا. مبارك. نانتر مبارك. صيام جف. Certificate of For his work. हाँ روز أكبر زیادہ کام کری جانداری سان ایمانداری سان سہ گئی صاحب سہ گو مدیر آسن سہ گو نام نگار آسن یس پتہ ایمانداری سان پکہ برونٛہہ سماجس پکنائے سماجک معاملات تلے. یہ تو خوش قسمتی ہے میں کہوں گا میری کہ اس فنکشن میں میں آج سید مشتاق احمد کو سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دے رہا ہوں. یہ اپریسیشن جو ہوتی ہے یہ ایڈمریشن یہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. یہ ان کو ملتی ہے جو سماج کے اندر اچھا کام کرتے ہیں. اس میں شک نہیں بہت سارے اس کے مستحق ہیں. تو میں یہ کہوں گا جو ہماری جمہوریت ہے جمہوریت کے 4 بڑے ستون ہیں کھمبے ہیں. سب سے بڑا کھمبا جو ہے وہ قانون سازیہ ہے جو قانون بناتی ہے. مثلا اس وقت پارلیمنٹ ہماری چل رہی ہے انڈیا میں بجٹ سیشن چل رہا ہے. ہماری جو منسٹر ہے وہ اس وقت بجٹ انٹروڈیوس کر دی ہے پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیچر کے اندر جو قانون بناتی ہے وہاں پر. تو یہ ایک اہم ستون ہے ہماری جمہوریت کا. اس کے بعد ایگزیکٹو ہے جس کو ہم اردو میں انتظامیہ کہتے ہیں جو ان قانونوں کو چلاتا ہے. اس کے بعد عدلیہ ہے عدلیہ جو انصاف کرتی ہے. یہ تیسرا ستون ہے تیسرا کھمبا ہے تیسرا مینار ہے ہماری جمہوریت کا. چوتھا جو مجھے لگ رہا ہے سب سے بڑا مینار جو ہے جو مجھے لگ رہا ہے جو ان سب پر نظر رکھتا ہے نگہداشت رکھتا ہے وہ صحافت کی دنیا ہے. وہ مراسلہ نگاری ہے نامہ نگاری ہے مراسلہ جس میں آپ سب لوگ کام کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو چوتھا ستون ہے اس جمہوریت کا مجھے لگ رہا ہے کہ مشتاق صاحب اس کا علم بردار ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے یہ علم دیے ہوئے ایک صحافی کا ایک مدیر کا ایک نامہ نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انصاف کی علم کو بلند کرے سچائی کی مشعل کو بلند کرے اور جمہوریت کو اس کی جو جمہوریت کی جو فائدے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لائے. ایک صحافی جو ہوتا ہے مدیر جو ہوتا ہے نامہ نگار جو ہوتا ہے جس کو آپ لفظ عام میں جرنلسٹ بولتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کے درمیان اور ایک سچویشن کے درمیان ایک قسم کا وہ ذریعہ بنتا ہے. اور سچویشن کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. یا گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس کے کام جو ہیں ان پر نظر رکھ کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو آج گورنمنٹ نے ایسی کیا آپ کے ساتھ اس طرح کرا ہے. کوئی غلط کام کرے کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ جو ہماری ہے جیسے میں نے شروع میں ہی کا ابتدا میں کہا یہ تو کام کرنے سے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے ایک حلف اٹھاتی ہے کہ ہم اس طرح کام کریں گے ہم اس آئین کے تحت کام کریں گے کوئی ناانصافی نہیں کریں گے. اگر کہیں ان کو نظر آتی ہے ناانصافی ایک صحافی کو ایک مدیر کو تو اس ناانصافی کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے. میں یہ کہوں گا جتنے بھی صحافی ہیں جتنے بھی ہمارے مدیر ہیں
नामनिगार हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो हमेशा इंसाफ की अलम को बुलंद करें, सच्चाई को बुलंद करें, जो समाज के अंदर नाइंसाफ़ियाँ हैं उनको एक्सपोज करें, वो लोगों के सामने लाएं। मसला आजकल हम देखते हैं, आजकल क्या हो रहा है, लोग सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं। क्या वजह क्या है? वाई, रीज़न, वजह क्या है, कैसे हुआ, हाउ, वाई, कैसे, कहाँ, क्यों, ये चीज़ें इनको लानी लोगों के सामने। या ये जो लोग ये ड्रग्स आजकल तो बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, वाई, वजह क्या है? जब हम बोलेंगे वाई, इसका मतलब है या तो इसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, या तो इसको और प्रॉब्लम है, वो तो जो उसको चेयरलेसनेस है, स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, या उसकी वजह से है, या उसका जहन जो है वो तो ये जो आजकल वो जो टीवी पर लगा है, फ़ोन पर लगा है, मोबाइल पर लगा है, 24 घंटे इसी के साथ रहता है। इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा जहनी तौर कमज़ोर हो जाता है, एक बीमारी पैदा हो गई है। तो ये वाई देखना है क्या वजह है, तो क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें आज कल के मरीज़ को लोगों के सामने लाई हैं। क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट एजेंसी है, वो एक इंटरमीडिएट एजेंसी मतलब एक ज़रिया है, वो एक किस्म का एजेंट है, लोगों तक पहुंचाने ये सारी चीज़ों को पहुंचाएंगे, मगर ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए। जैसे आजकल के जो जर्नलिस्ट हैं जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा आजकल का जो जर्नलिस्ट है उसके बहुत चांस है आगे जाने की, अच्छे लोगों से मिलता है, बड़ी बड़ी शख्सियत से मिलता है, इसके पास प्रेस कार्ड है, जहाँ कोई नहीं जा सकता है वहाँ ये जा सकता है। तो ये एक 24 घंटे ये तो बिल्कुल बिज़ी रहता है, इसका दिन जो है वो बराबर पूरा मैं ये कहूँगा 12 घंटे बिल्कुल बिज़ी रहता है। ये तो बेकार नहीं है, अगर ये चाहिए तो बहुत कुछ आगे जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे मौके हैं आगे जाने के। अगर वो कोशिश करेगा आगे जाने के लिए तो आगे जा सकता है, क्योंकि इनमें सलाहियत है। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, मदीर हैं, इनमें सलाहियत बहुत है, ये आगे बढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल। अगर हम सईद मुश्ताक साहब की बात करते हैं तो कहीं न कहीं बिल्कुल जर्नलिज़म का जो यहाँ पे ये कहेंगे जो जन्म हुआ है खासकर सब डिवीज़न गुलमर्ग में, इसमें जो मुश्ताक साहब का ख़ास रोल रहा है। ख़ास बात आज इसको यहाँ पे अवार्ड से नवाजा गया, काफ़ी खुशी हुई। और बाकी जो यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, जो काम करते हैं कई एजेंसियों के साथ, तो यही तौक़ा रहेगी उनसे, तो वो भी अच्छा काम करे, इस तरह से वो अवार्ड लेकर पूरे इलाके का नाम नहीं बल्कि घर का नहीं पूरे देश का नाम रोशन करे। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे इलाके के एक होनहार जर्नलिस्ट सईद मुश्ताक साहब, जिसको आज अवार्ड से नवाजा गया, वाकई ये इस अवार्ड के मुस्तहक थे। क्योंकि इससे पहले भी जब ये इस मैदान में नहीं थे, मैं उसको तब से भी जानता हूँ जब ये छोटा। बहुत ही अच्छी बात है कि इसको अवार्ड दिया गया, क्योंकि जब फ्लड्स आए 2024 के, उस वक्त भी मुश्ताक साहब जो 2014 के मुश्ताक साहब आगे थे हमारे इलाके में। जहाँ कभी कोई मुश्किल दरपेश थी वहाँ पर इसने उसको उजागर किया और उसका सद्भाव किया। इसी तरह कोविड-19 में भी ये आगे थे, किसी को पता नहीं होता था कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन उसको सबसे पहले पता होती थी। ये अपनी टीम, अपनी मेडिकल टीम लेकर वहाँ आते थे और हमारे इलाके में इसने जगह जगह उसका इलाज भी कराया और उसका सद्भाव भी कराया, और हम उस तूफान से भी बच गए। इसके लिए भी ये मुस्तकी इस अवार्ड की बहुत बहुत शुक्रिया है कि मुझे इस काबिल समझा। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे हर दिल अजीज़ जो हमारे जम्मू कश्मीर का तारा है, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर का तारा नहीं कहूँगा, मैं पूरी दुनिया का कहूँगा। वो इसलिए कि मैदान जो तालीमी मैदान है, तालीमी मैदान में इसके जो इस हमारे स्कॉलर के हमारे डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल जब्बार गोखामी साहब जो हैं यहाँ पे, जो जब्बार साहब हैं, इनकी देन इस तरह है कि इन्होंने कितने लोगों को पढ़ाया है जो इस वक्त आउट ऑफ दिस कंट्री जॉब करते हैं और इस कंट्री में भी करते हैं। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे जितनी भी सारी एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम कहेंगे 70% एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त वो है जो IAS IPS इस वक्त फाइज है, उन पोस्टों पर फाइज है, तो वो प्रोफेसर साहब की इसी की शान है, इन्हीं की बदौलत है कि इन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया है। और ये हमारी आन बान शान है, ये प्रोफेसर साहब जो कि गोखामा में रहते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल जब्बार साहब, जो गोखामा कुंजर टंगमर्ग में रहते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि इनकी
इनके हाथों से, इनके मुबारक हाथों से मुझे इस एवार्ड से नवाजा गया, जिसमें इन्होंने मुझे बेबाक सहाफ़ी का एक एजाज़ दिया है, एक एवार्ड दिया है, जिसकी मुझे लगभग मैंने नेशनल इंटरनेशनल एवार्ड्स लिए हैं या सब डिवीज़न लेवल पे या स्टेट लेवल पे, लेकिन उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे आज है, क्योंकि आज मुझे जम्मू कश्मीर के एक तारे ने अपने एवार्ड से नवाजा है। वो है बेबाक सहाफ़ी और वो मुझे दिया है डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल जब्बार साहब, जो गोखमा में रहते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल आल्सो जो हमारे यहाँ पे जो वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन टंगमर्ग जो हमारी है, जिसके बिल्कुल शान बशाना यहाँ पे हमारे सागर साहब हैं, जिसके ये बानी हैं और नज़र गुज़र रखते हैं, और हमारे साथ डार इशफाक साहब हैं, बानी हैं, उसके फाउंडर हैं, या सैयद मुदस्सिर साहब यहाँ पे हैं, या हमारे हर दिल अजीज़ यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद अकबर नजार साहब हैं, और बिलाल साहब यहाँ पे बैठे हैं हमारे हैं PR न्यूज़ से जो काम कर रहे हैं। मैं इन तमामों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे वक्त वक्त पर गाइडेंस भी की और जिन्होंने मुझे साथ भी दिया। ये जितना भी है इस वक्त ये इन्हीं की बदौलत है।